انٹرمیڈیٹ کا دوسرا سالانہ پرچہ اساتذہ کے بجائے لوکل گورنمنٹ اور میونسپل کمیٹی کا عملہ نگرانی پر مامور۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد حسان سپرنٹینڈنٹ مقرر۔ آپ کو بتا رہے ہیں اساتذہ کی ہٹ دھرمی بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ انٹرمیڈیٹ کا دوسرا سالانہ پرچہ اساتذہ کے بجائے لوکل گورنمنٹ اور میونسپل کمیٹی کا عملہ نگرانی پر مامور ہو گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد حسان سپرنٹینڈنٹ مقرر۔ سرکاری ملازمین اور اساتذہ کو احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ مظفر گڑھ میں 6 سرکاری ملازمین کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمے میں اگیگا اور پنجاب ٹیچرز یونین کے عہدے داروں کے نام شامل۔ مقدمے کے اندراج کے باوجود بھی سرکاری ملازمین کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سرکاری ملازمین اور اساتذہ کو احتجاج کرنا مشکل پڑ گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عامر ڈوگر سے۔ جی عامر، بتائیے گا کتنے اساتذہ کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح مظفر گڑھ میں بھی ٹیچرز اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا احتجاج جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں 7 روز سے مظفر گڑھ میں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کچہری روڈ بلاک کرنے اور نعرے بازی کرنے کے خلاف جو ہے وہ تھانہ سول لائن میں 6 سرکاری اساتذہ اور اگیگا ملازمین کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا، جن میں نائب صدر جو ہیں وہ پنجاب ٹیچر یونین کے ان کا نام بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک نجی اکیڈمی کے مالک ہیں محمد رفیق، ان کا نام بھی ایف آئی آر میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ 2 اگیگا کے عہدیداران شامل ہیں۔ ایف آئی آر میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کچہری چوک چونکہ شہر کا مصروف ترین چوک ہے، اسے جان بوجھ کر سرکاری اساتذہ کی جانب سے بند کیا گیا، جس کے بعد گھنٹوں ٹریفک بلاک رہی اور یہ حساس ترین علاقوں میں سے ایک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ جی عامر ڈوگر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ عامر آپ کا۔ ملتان میں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات جاری۔ اساتذہ کی ہڑتال کے پیش نظر تعلیمی بورڈ نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سہیرا طارق سے۔ جی سہیرا، بتائیے گا۔ ملتان تعلیمی بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ پارٹ 2 دوسرے سالانہ امتحان کا آغاز جو ہے وہ آج سے ہو چکا ہے۔ 20 اکتوبر سے شروع ہونے والے امتحانات جو ہیں وہ 31 اکتوبر تک جاری رہیں گے۔ وہ سٹوڈنٹس جو اپنے مارکس امپروو کرنا چاہتے ہیں یا سپلی جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ امتحانات میں شریک ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ملتان تعلیمی بورڈ نے واضح کیا ہے کہ 26 امتحانی مراکز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، جس میں ملتان شہر میں امتحانی مراکز کی تعداد 10 ہے اور خانے وال، لودھراں اور وہاڑی میں جو ہے وہ 5، 7 اور 3 امتحانی مراکز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ کل 26 امتحانی مراکز میں جو ہیں وہ ٹیچرز اور نگران عملے کی ڈیوٹی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ 20,000 سے زائد جو طلبہ طالبات ہیں وہ ملتان شہر میں امتحان دے رہے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ کا کمبائن امتحان ہو رہا ہے اور آج پہلا پیپر جو ہے وہ سٹوڈنٹس نے فرسٹ ٹائم میں جو ہے وہ سائیکالوجی کا دیا ہے، جبکہ سیکنڈ ٹائم میں جو دوپہر 2 بجے کے بعد پیپر شروع ہوگا وہ ہسٹری کا ہوگا۔ جی سہیرا آگاہ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ انتظامیہ کے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے سلسلے میں انتظامات مکمل۔ ڈی سی رضوان قدیر نے امتحانی مراکز کی حدود میں دفعہ 144 بھی نافذ کر دی۔ امتحانی مراکز کی حدود میں تحریری مواد اور غیر متعلقہ شخص کے داخلے پر پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کے حکم پر اے سیز کے امتحانی مراکز کے دورے اور جائزہ بھی جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان ضلع انتظامیہ کے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے سلسلے میں انتظامات۔ ڈی سی رضوان قدیر نے امتحانی مراکز کی حدود میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ امتحانی مراکز کی حدود میں تحریری مواد اور غیر متعلقہ شخص کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مہر ایکسپریس ٹرین حادثے سے بال بال بچ گئی۔ ٹرین کو واش کرنے کے لیے واشنگ لائن میں لے جایا جا رہا تھا۔ ٹرین کا انجن ملتان ریلوے اسٹیشن پر ٹریک سے اتر گیا۔ انجن ٹریک سے اترنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی، جبکہ مہر ایکسپریس ٹرین میں مسافر موجود نہ تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مہر ایکسپریس ٹرین حادثے سے بال بال بچ گئی۔ ٹرین کو واش کرنے کے لیے واشنگ لائن لے جایا جا رہا تھا، جبکہ ٹرین کا انجن ملتان ریلوے اسٹیشن پر ٹریک سے اتر گیا۔ انجن ٹریک سے اترنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ رحمیار خان میں تاجروں نے کم ہوتی مہنگائی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ گھی کی پریمیئر کوالٹی 50 روپے اور مقامی گھی میں 90 روپے فی کلو تک کی کمی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عاصم صدیق سے۔ عاصم، بتائیے گا۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مستحکم ہوتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ
पेट्रोल की कीमतें भी कम हो रही हैं, जिसका असर जो है आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम आदमी परेशान था, क्योंकि हर चीज़ आटा, चावल, दालें और दो चीज़ें शायद ज़रूरी रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाती हैं, वो महंगी होती जा रही थी, मगर अब उनकी कीमतों में मसलसल कमी होती जा रही है। सीनियर नायब सदर जनूबी अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब आतिफ गफ़ार हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब, तमाम अशिया महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं। अब डॉलर की कीमत भी गिरना शुरू हो गई है, पेट्रोल की कीमतों के भी असर आना शुरू हो गया है, वो भी कम होते जा रहे हैं। तो कितना महंगाई कितनी कम हुई है, तमाम अशिया कितनी सस्ती हुई है, और मज़ीद क्या देखते हैं ये सस्टेनेबिलिटी आम आदमी तक किस तरह से मज़ीद उसको महंगाई से बचा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसिम, आपने मुझे आज आए और मेरा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि घी के ऊपर 50 रुपये किलो जो प्रीमियम घी है उसके ऊपर 50 रुपये किलो और 90 रुपये किलो तक तकरीबन घी की कीमतों में कमी हुई है। 50 रुपये किलो के करीब चीनी की कीमत में कमी हुई है, और उसके बाद तकरीबन जो यूनिलीवर और बाकी जो आइटम्स हैं, जो मल्टीनेशनल आइटम्स हैं, उनमें भी 10 से 15% जो है कमी हुई है। अगर हम एवरेज अगर बात करते हैं तो 20% तकरीबन जो है कमी हो गई है ओवरऑल। और गरीब के बजट की बात करें तो उसको अगर मंथली ग्रॉसरी के बजट में 2 से 3 हज़ार रुपये का तकरीबन रिलीफ मिला है। अगर गवर्नमेंट ये सस्टेन करती है, डॉलर को इधर रोकती है या मज़ीद कम करती है, तो ये चीज़ें मज़ीद भी कम होंगी फ्यूचर में। बिल्कुल मज़ीद कम होंगी। तमाम अशिया जो हैं वो सस्ती होती जा रही हैं, घी भी सस्ता हो चुका हुआ है, प्रीमियर 50 रुपये और जो दूसरी क्वालिटी का वो 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कम हो चुका है। इसके अलावा मज़ीद चीज़ें इसमें चावल, आटा, घी, चीनी, दालें, ये वो अशिया हैं जो रोज़ इस्तेमाल की हैं, वो भी हैं, और मल्टीनेशनल को। जी आसिम आगा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं बहावलपुर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। ज़िला इंतज़ामिया ने शाय खुरूनूश की नई कीमतें मुकर्रर कर दी। ताजरों को नए नरखनामे आवेज़ा करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। चावल बासमती की कीमत 290 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर, जबकि दाल चना मोटी 192, दाल चना बारीक 180 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर, दाल मसूर मोटी 280 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई, जबकि मैदा और सूजी के नर्ख 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दिए गए। दूध 110 रुपये फ़ी लीटर, जबकि दही 120 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दिया गया। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ज़िले इंतज़ामिया ने अशाए खुरूनूश की नई कीमतें भी मुकर्रर कर दी। ताजरों को नए नरखनामे आवेज़ा करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कैंसर के आलमी दिन पर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जहानिया में सेमिनार का इनेकाद किया गया। ख़वातीन और तालबात को ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए आगाही फराहम की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन बूटर से। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस वक्त जहानिया में जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक सेमिनार मुनक्कद किया गया है, जिसमें कैंसर की जो है वो आगाही प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, जिसमें ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी आगाही दी जा रही है। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर राव राशिद हफीज़ साहब मौजूद है। मज़ीद से बात करें, सर बताइएगा कि कैंसर के हवाले से क्या कहें? जी, ये जो अक्टूबर का ये महीना होता है, इसमें सारी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इसमें अवेयरनेस जो है वो दी जाती है। इसी सिलसिला में अगर हम देखें तो ये जो बीमारी है ये बहुत आम हो चुकी है, और एशिया में हमारा जो पाकिस्तान है उसका 1 नंबर है इसमें। यानी हमारे यहाँ पे 9 औरतों में से 1 औरत ऐसी है जिसको ये इशू है, तो इतना यानी इसमें इजाफा हो गया है। बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अमारा साहबा मौजूद है। मज़ीद इससे बात कर रहे हैं। मैडम बताइएगा कि इसकी रोकथाम के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी, जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर की प्रिवेंशन के लिए और उसके लिए बनाया जाता है, उसकी अवेयरनेस के लिए। तो कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है, खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर, जिससे हम बचाव मुमकिन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम इससे बच सकते हैं, लेकिन अगर आपने इब्तदाई स्टेज के ऊपर इसको तशख़ीस कर ली है और मर्ज़ का पता कर लिया है, तो उसका 100% इलाज मुमकिन है और एक इंसानी जान बचाई जा सकती है। मेरी तमाम ख़वातीन से, बच्चियों से ये गुजारिश है कि वो हर महीने अपना
छाती का मुआयना करें। अगर उसमें कोई गैर मामूली तब्दीली महसूस हो रही है तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि कैंसर इंतहाई खतरनाक और जानलेवा मर्ज है। इसके बचाव के लिए जो इब्तदाई स्टेज पर ये जी फौरी तौर अमजद हुसैन भुट्टो रखा करे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं सफ़ेद छोड़ी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। ब्लाइंड एसोसिएशन मियाँ वाली की सूबाई सदर सादिया किरमानी की शिरकत। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अख्तर मिजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मियाँ वाली में कुछ वजूहात की बिना पर 15 अक्टूबर को सफ़ेद छड़ी का जो आलमी दिन है वो नहीं मनाया जा सका। आज इस हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई है जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है सादिया किरमानी जो ब्लाइंड एसोसिएशन पंजाब की सदर हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर जो अफसरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे इस हवाले से बात करते हैं। मैम, क्या समझती हैं कि ब्लाइंड्स के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और उसके जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए, काम हमारे इदारे जो हैं गवर्नमेंट के कर रहे हैं, ये बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम करना जो है माशरे के लोगों के लिए बाकी है। और ख़ास तौर पे आज हम वाइट केन का डे जो यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नाबीना अफराद को लेके, वाइट केन को लेके जो है ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं और ट्रैफिक लॉज में शामिल किया जाए ताकि तमाम ड्राइवरों को पता हो कि जब एक ब्लाइंड जो है वाइट केन लेकर रोड पर आ रहा है तो उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जी, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। सर, बतौर ट्रैफिक इंचार्ज बड़ा एक अहम किरदार है आपका भी। क्या किया जा रहा है? अक्सर ब्लाइंड्स जो हैं उनको ड्राइवर हजरात से शिकायत होती है, इस हवाले से क्या कर रही है पुलिस? जिस गाड़ी के ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ होगा उसे हर चौक और चौराहे में उसको और उसकी फैमिली को स्पेशल खसूसी अहमियत दी जाएगी और हर चौक चौराहे में उसको पंजाब पुलिस और दीगर अफराद की तरफ से न सिर्फ अहमियत दी जाएगी बल्कि जो कवानीन बनाए गए हैं किराए की मद में उस पर इंशाल्लाह सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। जी, जो किराए की मद में कवानीन बनाए गए हैं माजूर अफराद के लिए, अख्तर मिजाज से कहा करे थे, बहुत शुक्रिया।